There is a standard of life described in the New Testament which God wants us to live by. नए नियम में एक स्तर दिया गया है जिससे स्तर के साथ जीने के लिए परमेश्वर चाहता है. And when Paul said, I press toward the mark for this goal, और जब पौलुस कहता है कि उस निशाने की ओर आगे, उस लक्ष्य की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं, there was no such thing in the Old Testament. और पुराने नियम में ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती. In the Old Testament, the only goal was get the land of Canaan. और पुराने नियम में एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से उस वाचा के देश में पहुंचना है, And drive all the giants away, और पूरी तरह से वो जो दानव जो है उनको बाहर निकाल देना है, get their property, और पूरी तरह से उस संपत्ति को ले लेना है, and enjoy all the wealth God gives you there, और हर एक धन जो परमेश्वर वहां देता है उसका आनंद लेना है, and go 3 times a year to Jerusalem and offer the sacrifices. और साल में 3 बार यरूशलेम में जाना है और बलिदान को चढ़ाना है. And that's all. और इतना ही करना था. Whereas there was no personal goal in one's personal life. और उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं था. There were no commands, there were commands in the Old Testament like don't murder. और पुराने नियम में ऐसे आज्ञाएं थी कि आपको खून नहीं करना है, And don't commit adultery. व्यभिचार नहीं करना है, And don't tell a lie when you're giving a witness in a court. और जब आप कोर्ट में जाते तब झूठी गवाही नहीं देनी है. And honor your father and mother. माता पिता का आदर करना है. They were all external commandments. ये सब बाहरी तौर की आज्ञा थी. And they could keep it. Any God-fearing person could keep it. और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी जन इसका ये करता था. Those 10 commandments, there are many non-Christians also who keep. और इन 10 आज्ञाएं जो है वो बहुत सारे अन्य जाति भी इसका पालन करते हैं. But you never read commandments in the New Old Testament like this. लेकिन पुराने नियम में ऐसी कोई आज्ञा आप नहीं पाते हैं. Don't be a hypocrite. आप किसी भी तरह का ढोंग न करें. Don't be proud. घमंड न करना. Don't be anxious. किसी भी बात की चिंता न करना. Don't love money. और पैसे का लोभ न करे. Don't be angry. क्रोध न करे. Don't lust after women. और स्त्रियों के पीछे लालसा न करे. No such commandments. ऐसी कोई आज्ञा नहीं पाते. But when you come to the New Testament, they're all there. लेकिन नए नियम में हम देखते हैं ये सारी आज्ञाएं वहां हैं. Just think of these few things I mentioned just now. और जब सोच के देखिए ये सारी चीजें जो मैंने अभी कही. Don't be a hypocrite. पाखंड न करे. Don't be proud. घमंड न करे. Don't lust after women. स्त्रियों के पीछे लालसा न करे. Don't get angry. क्रोध न करना. Don't be anxious. चिंता न करना. Don't love money. और पैसे का लोभ नहीं. Don't murmur or complain. और शिकायत नहीं करना, कुड़कुड़ाना नहीं. When you pray, don't let anybody know. और जब आप प्रार्थना करें किसी को पता न चले. When you fast, don't let anybody know. जब आप कुछ मांगते देते तब किसी को पता न चले. Is it possible to keep these commandments? क्या संभव ये आज्ञाओं का पालन करना? The question is, did God want us to keep these commandments? और प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर चाहता था कि हम इन आज्ञाओं का पालन करें? And will you as a father tell your children to do something which you know is impossible for them to do? क्या आप एक पिता होने के नाते अपने बच्चे को ऐसा कुछ करने को कहेंगे जो करना असंभव है? Like carry 1,000 kilos on your head to some place. और आप अगर क्या अपने बच्चे को कहेंगे 1000 किलो का वजन उठा के कहीं पे जाओ. That's ridiculous. They cannot do it. और ये संभव नहीं है, वो नहीं कर सकते. Is God a father like that? क्या परमेश्वर एक वो पिता के समान नहीं है? Gives us commands that we cannot keep. और ऐसी कोई आज्ञा देगा जिसका हम पालन नहीं कर सकते? And yet all these things I mentioned are in the New Testament. और ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो नए नियम में है. Every one of them. You read the Sermon on the Mount. आप देखिए पहाड़ के उपदेश को देखें. You read Philippians chapter 4. फिलिप्पी 4 अध्याय को पढ़ें. All these things that I mentioned are there. मैंने जो बातें आपसे कही वो सब वहां है. So why is it then that most Christians say we cannot keep these commandments? तो फिर क्यों ज्यादातर मसीह इस प्रकार कहते कि इन आज्ञाओं को हम नहीं पालन कर सकते? They read the Bible and say this is an impossible standard. और वे बाइबल को पढ़ते और कहते ये बहुत ही असंभव एक स्तर है. And so they remain in their defeated condition. और वो अपने हारे हुए जीवन की अवस्था में ही रहते हैं. They are like the 10 spies who came to the
border of Canaan and said, "We cannot go into this land. Impossible." और वे लोग वो 10 जासूसों के समान हैं जो कनान के सीमा पर आकर कहते हैं कि हम उस वाचा के देश में नहीं जा सकते। And 600,000 people joined them and said, "Yeah, it's impossible. We cannot overcome these giants." और इन जासूसों के बाद 6 लाख लोग भी इनको कहते हैं कि हम आपके जैसे ही हम इस स्थान में नहीं जा And सकते। you know what God said? आप पता है परमेश्वर क्या कहता है? Okay, you will never enter this land. परमेश्वर ने कहा ठीक है, आप कभी भी उस वाचा के देश में You प्रवेश नहीं will die करोगे। in the wilderness without possessing what I wanted to give you. आप जंगल में ही जो बातें आपको वाचा दी गई उसे न पाते हो, जंगल में आप मर The जाएंगे। same thing is happening to Christians, hundreds of thousands of Christians today. और सैकड़ों विश्वासियों के साथ आज वही हो रहा है। I'm not talking about nominal Christians. और मैं साधारण मसीह की बात नहीं कर रहा। Nominal Christians are like the people who stay in Egypt, slaves of sin. और साधारण मसीह वो होते हैं जो पाप में, जो मिस्र की पाप की गुलामी उसी में रहते I'm हैं। talking about people who came out of Egypt, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मिस्र की गुलामी से निकले हैं put the blood on the door and came out. और उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर मेमने का लहू लगाया, वहां से निकले हैं। Picture of those who trusted in the blood of Jesus Christ. और वो एक चित्र है जो यीशु के लहू पर विश्वास भरोसा Went करते हैं। through the baptism of the Red Sea. और पवित्र आत्मा वो लाल समुद्र के बपतिस्मा के अंदर They से वो went निकले in and हैं, came out. उसमें से बाहर निकले वो है। And the baptism of cloud, picture of the baptism of the Holy Spirit came upon them. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो एक बादल के समान उनके ऊपर हुआ। And yet, लेकिन these फिर भी did not enter the land of Canaan or kill the giants. और ये वो दानों को वो नाश नहीं कर पाए और वाचा के देश में प्रवेश नहीं This कर is a पाए। picture of born again Christians और ये चित्र है नए जन्म पाने who वाले are विश्वासियों redeemed का। by the blood of Jesus Christ, और लहू से द्वारा वो खरीदे गए लोग हैं baptized, और बपतिस्मा लिया है। baptized in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा उनका हुआ है maybe speak in tongues also. और शायद वो अन्य भाषा में भी But बात करते हैं। they don't occupy the land of Canaan. इसके बावजूद भी वाचा के देश में कनान में वो प्रवेश नहीं कर पाए। Today, आज what is the land of Canaan for us today? हमारे लिए वाचा का वो कनान देश क्या है? This human body, हमारा ये शरीर from head to foot, that is the dimensions of the land of Canaan for us. और हमारे सर से लेकर पांव तक का जो भी ये स्तर है, ये हमारा एक वाचा का कनान देश है। Inside this land, many giants have been ruling for years. और इस कनान देश के अंदर, इस शरीर के अंदर बहुत सालों से बहुत ऐसे दानव है, राक्षस है जो इस पर राज्य कर रहे All हैं। those giants are like Goliath. और ये सारे दानव जो है गोलियात के समान हैं। For example, anger. सोच के देखिए, क्रोध, It's a giant. ये बहुत बड़ा दानव है It stands in front of you like Goliath और गोलियात के समान आपके सामने खड़ा होता है and says, "You think you can conquer me? और वो आपको चुनौती देकर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर विजयी हो सकते I हो? have ruled you all your life. और वो कहता है, मैंने जीवन भर आप पर राज्य किया है All your life I made you an angry man and an angry woman. और पूरा जीवन मैंने तुझे एक क्रोधित स्त्री या पुरुष रखा है। Don't you remember your father and mother? They were also my slaves. और अपने माता पिता को याद रखना, क्या वो मेरे दास नहीं थे, गुलाम? Your father was an angry father, your mother was an angry mother. तुम्हारी माता और जो पिता थे वो भी एक क्रोधित मनुष्य The थे। same you don't know, but that was how your grandfather and grandmother और were. आप नहीं जानते आपकी परदादी दादी जो थी, उस दादा And you वो are, भी ऐसे ही and थे। you are like that, and you will always be like that. और आप भी ऐसे ही, और आप वैसे ही रहोगे। You can go to any church, आप कोई भी कलीसिया में जा speak in सकते हैं, tongues, अन्य भाषा में बोल but you सकते will हैं, remain slave to anger. लेकिन आप क्रोध के गुलाम होकर ही रहेंगे। You will speak in unknown tongues, but you won't be able to control your mother tongue. आप अन्य भाषा में बोलोगे लेकिन अपनी मातृभाषा को आप नियंत्रण नहीं कर The पाते, giant says, "I rule you." क्योंकि ये दानव कहता है, मैं तुझ पर राज्य करता हूं। And we say, "Yes, I can never overcome you." और फिर हम कहते हैं, हाँ, मैं कभी क्रोध के ऊपर मैं विजय नहीं हो That's how सकता। all the Israelites stood before Goliath. और इसी प्रकार इस्राएली उस गोलियात के सामने खड़े थे Till one person, young boy called David came. और एक जवान व्यक्ति दाऊद नाम का He वहां was खड़ा not हुआ strong. He was not stronger than Goliath. और वो गोलियात से सामर्थ्य But मजबूत नहीं था। he said, "You come to me with all this power. I come to you in the name of the Lord." और वो कहता है, तू बड़े शस्त्रों को लेकर आता है, लेकिन मैं यीशु परमेश्वर के नाम See, से तेरे सामने आता We हूँ। tell children, David killed Goliath with a stone. हम बच्चों को कहते हैं कि दाऊद ने एक पत्थर से गोलियात को मारा। It's okay. We can tell children that. हम बच्चों को कहना ये ठीक बात है, To grown-up people, we say David killed Goliath by faith. लेकिन जो बड़े विश्वासी उनसे इस प्रकार कहते हैं कि दाऊद ने गोलियात को विश्वास के द्वारा His मारा faith in God made that stone go directly to the place where it could kill और Goliath. दाऊद का विश्वास जो परमेश्वर पे था, उसके द्वारा पत्थर उसके सीधे सिर पर गिरा। Same with Caleb and Joshua. और उसी प्रकार कालेब और यहोशुआ के साथ, They were not stronger than the giants. और वो जो दानव थे उससे मजबूत वो नहीं थे। They said, "But if God helps us, which giant can stand before us?" और वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारा सहायक तो कौन सा दानव शूरवीर हमारे सामने खड़ा रह They सकता were है। 80 years old.
80 साल के वे हैं They didn't trust their muscles. और उनके जो खुद की ताकत है उसके ऊपर वो भरोसा नहीं Trusted रखते, God. लेकिन परमेश्वर पर। So, to press on to God's highest परमेश्वर के उच्च स्तर तक बढ़ने के is लिए like occupying the whole land of Canaan. वो कनान का सारा देश जिस पर हमें राज्य करना They है, could not occupy it in one day. और वो एक दिन पर उस पर राज्य नहीं कर पाए। Just like God did not recreate the earth in one day. जैसे परमेश्वर ने पूरी तरह से पृथ्वी को एक ही दिन में नहीं Day बनाया, by day He did it. लेकिन प्रतिदिन एक दिन इस तरह बनाया। This principle of slow progress और ये सिद्धांत जो धीरे धीरे बढ़ती जो होती है towards perfection. और सिद्धता की ओर, So the Israelites also went into the land of Canaan and they took a long time to occupy the land. इसी प्रकार इसराइलियों को भी उस कनान देश में जाने के लिए बहुत दिन लगे ताकि उस पर They राज्य कर would सके। face one giant, और एक दानव को चुनौती उन्होंने kill दिया it, और उसको मार दिया occupy his land. और उस देश को ले लेना है। Then they'd see another giant, फिर उन्होंने और एक शूरवीर या दानव को kill देखा that person, और उसको मारा occupy his land. और उसको ले लेना है। Then another giant, और एक दानव को देखा kill him and occupy his land. और उसको मारना है और उसको That ले is लेना how they है। occupied the land of Canaan. उस प्रकार से कनान के देश को उन्होंने ले लिया। God helped them. परमेश्वर ने उनकी सहायता की। Their strength, they could never kill even one giant. उनकी खुद की सामर्थ्य से वो कभी भी एक दानव या शूरवीर को That भी is ना a मार picture of the सकते। life of victory. और यही एक चित्र है विजयी जीवन का। You don't conquer everything in one day, एक ही दिन में आप सब पर विजय नहीं प्राप्त करते, but one sin at a time. लेकिन एक पाप एक दिन में, And not in your own strength. अपनी सामर्थ्य से नहीं, With God's help, it can be done. लेकिन परमेश्वर की सहायता से ये हो And सकता whatever है। you occupy, लेकिन जिस चीज पर आपको ले लेते whatever हैं giant you kill, और जिस दानव को आप मार गिराते हैं, this land becomes yours. और वो देश जो है आपका बन जाता That is है, how you become spiritually wealthy. और उसी प्रकार आत्मिक रीति से आप धनवान बन जाते हैं। And then there are still many giants in the north of Canaan you have not even seen. और बहुत सारे ऐसे दानव आगे हैं कनान के देश में रास्ते में जिनको आपने अभी नहीं देखा है। So there are many sins in our life which we have not even seen. ऐसे बहुत सारे पाप हमारे जीवन में जहां आज तक हमने उसे देखा तक नहीं है। When I was converted, और जब मेरा उद्धार हुआ I knew certain things were sin. और मुझे पता था कुछ बातें करना या नहीं करना That is पाप like the है, small mini giants that I can see. और तब मैं छोटे छोटे जो दानव थे उसको मैं इस प्रकार देख पाया। But now, after 58 years, लेकिन अब 58 साल के बाद after killing many giants in my life, और मेरे जीवन के बहुत सारे दानवों को मारने के I बाद, am discovering new giants that I never even knew existed. और अभी मैंने बहुत अनेक और दूसरे दानवों को देखा जो मैंने नहीं देख पाया। Little things छोटी छोटी बातें which other people don't even call sin. और जो और लोग उसको पाप तक नहीं कहते, But when you press on to perfection, you see that as sin. लेकिन जब आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ते तब आप उसे पाप के रूप में देख पाते So, हैं। you know, there is a battle all the way till the end of our life. और हमारे जीवन के अंत तक उस रास्ते में हर एक दिन एक युद्ध है। The Christian life is a battle from beginning till the end. और मसीह जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक एक युद्ध का But it जीवन is है। a battle in which the Lord can help us win every time without a defeat. लेकिन ये ऐसा युद्ध है जहां परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है ताकि हम उसमें जीत सके। A giant may push me down for a moment, but I'll finally get up and kill him. वो दानव शायद मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे गिरा सकता है, लेकिन उसे हटाकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। But you must believe that the Lord will help you to bring every giant beneath your feet. और आपको इस चीज पर विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है उस दानव को गिराने के लिए। Romans 6:14. रोमियो 6:14। See, sin cannot have dominion over you because you're under grace and not under law. और इस प्रकार वचन कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Let me read it like this. हम इस प्रकार इसे पढ़ते हैं, No sin can conquer you, कोई भी पाप मुझ पर प्रभुता न but करेगा, you will conquer sin. लेकिन मैं पाप पर विजयी Every sin होऊंगा। will be under your feet. और हर एक पाप हमारे पांव के नीचे होगा। What does it mean, not under law? और उसका मतलब क्या है कि व्यवस्था के अधीन न होना। It means you're not fighting in your own strength. इसका मतलब कि आप अपनी सामर्थ्य में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। Under law means you yourself are trying to kill the giant. और व्यवस्था के अधीन रहना मतलब अपने खुद की ताकत से उस दानव को मार गिराने की कोशिश You करना। tried that for years and he always defeated you. और बहुत सालों से आपने इस प्रयत्नों को किया और हर बार आप हारे हैं। But now, grace is God's strength coming to help you. लेकिन हम अनुग्रह के अधीन, जिसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य से उसको मार गिराते हैं Then you can bring him under your feet. और उसके बाद उसको एक दिन पैरों तले So लाते as हैं। long to be under law means you're keeping on struggling with your own strength. You will never win. I'll tell you, in 100 years you will not win. और तुम व्यवस्था के अधीन रहकर अगर करेंगे तो 100 सालों तक भी आप उस पर विजय नहीं Because प्राप्त you're पाएंगे। struggling yourself. आप संघर्ष करते रहेंगे अपने आप से।
You have to ask God for His grace or His power. हमें परमेश्वर से अनुग्रह या उसके सामर्थ को मांगना है। See, what does grace mean? और अनुग्रह का मतलब क्या है? See 2 Corinthians 12. दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। The Lord told Paul, प्रभु पौलुस से कहता है यहाँ 2 Corinthians in chapter 12, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय verse 9. 9 वचन। You read it as one sentence. उसको एक ही शब्द एक ही वाक्य में My पढ़ें। grace is sufficient for you because my power is perfected in your weakness. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। See, my grace is equal to my power. That's what this verse says. इसका मतलब है कि मेरा उसका अनुग्रह जो उसकी सामर्थ के बराबर है। That's the meaning of this. और उसका मतलब ये होता है, Why is my grace sufficient to help you in every situation? क्यों परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए हमारी हर एक निर्बलता में काफी है? Because my grace is the same as my power. क्योंकि उसका जो अनुग्रह है उसके सामर्थ के बराबर My है। power will perfect itself completely in your weakness. और मेरा सामर्थ्य आपकी निर्बलता के अंदर तुम्हें पूरी तरह से सिद्ध करेगा। Paul says, if that is the case, I will boast in my weakness. और पौलुस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बड़े आनंद से निर्बलताओं पर घमंड Because then करूंगा, the power of Christ will rest on me. क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर प्रभुता So I have करेगी। to come to Jesus and say, Lord, I am weak. I cannot conquer this anger and this lust and all these things. और तभी यीशु के पास आकर हमें ये कबूल करना है कि प्रभु अपने सामर्थ से इस क्रोध के ऊपर विजय नहीं I पा want you to सकता। give me the power of your Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के आपके सामर्थ I चाहिए। want you to pour out upon me the spirit of grace. और ये अनुग्रह का जो सामर्थ जो अनुग्रह मुझ पर आप उंडेल Fill me लें from within और मुझे भीतर से भरिए so that I can overcome. ताकि मैं विजयी प्राप्त कर सकूं। So, but that will only come if you believe that God, what God has commanded, is really the command of God. आप तभी इस पर विश्वास करें क्योंकि तब जब परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी सच में वो आपके लिए एक आज्ञा है।